Hello students, so today I'll start with Fourier transforms. Again, it's a easy topic, not that difficult, formula based है और बस इंटीग्रेशन करते जाना है तो हो जाएगा. ओके, सो Fourier transform, again Fourier transform जैसे Laplace transform था, it converts your signal from time domain to frequency domain. So here also this Fourier transform also does the same thing. जैसे Z transform भी है, so that is used for discrete signals. Okay, so जैसे Laplace transform, then you have inverse Laplace. So Fourier transform also will have inverse Fourier transform. Okay, so let us see the formula. So Fourier transform is given by capital Fs equal to 1 upon root 2 pi minus infinity से infinity e raised to I sx fx dx. Okay, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. So I'll write it is the Fourier transform of given function fx. तो IFT का फॉर्मूला क्या होगा? IFT is given by fx. मतलब अब तुमको fx मिलना चाहिए फिर से. So it is 1 upon root 2 pi minus infinity से infinity e raised to minus isx आएगा into capital Fs ds. जो भी यहाँ पे फंक्शन मिला होगा उसी को यहाँ पे डालना है. ओके, तो ऑब्वियस है दैट यू विल नीड टू फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर ये IFT यूज़ करना है तो. ओके, और अगर क्वेश्चन में दे दिया और सीधा IFT लगाने बोल दिया तो वेल एंड गुड. सो फॉर्मूलाज कैसे याद रखना है? सिर्फ इसी में फ़र्क है, इस टर्म में फ़र्क है बस, माइनस का. ओके, तो याद रखना ये. So yeah, these are the formulas you have to remember, these two formulas. Then gradually I'll give you a few more formulas, but first let us do sums based purely on this. Okay, और अगर किसी को Fourier transform और Laplace transform, majority the EXCC or the electronic student, so if they want to relate it to signals and systems, so you can refer to a channel Zack Star. Okay, or I think 3 blue 1 ब्राउन में भी होगा, बट आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज जैक्स्टार में तो है फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि सिग्नल्स एंड 3D फॉर्म में. सो माइट बी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू फर्दर स्टडी इन डेप्थ, देन यू कैन डू इट. आई एम नॉट शोइंग इट ओवर हियर बिकॉज सी दे दोज फॉरेन ऑथर्स एंड फॉरेन टीचर्स, वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा चीज़ें बताई जाती है. So they are well versed with those things. Okay, so if I try to do that thing here, I might spoil that your experience. Okay, so I don't want to do that. Okay, like even I refer it sometimes, if I want to study something in deep, so you can do that. और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव है तो बस ये कर लो, काफ़ी है. So now let us take the first sum. Okay, so this is your first question. Find Fourier transform of fx equal to something, और दिया mod x is less than 1, mod x greater than 1 में 0 है, and hence prove that something. तो ठीक है, पहले तो फर्स्ट स्टेप करते हैं. फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला ना, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. सो फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाई fs इक्वल्स, कैपिटल fs लिखना हमेशा, 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू आई एस एक्स fx dx. Minus infinity. Okay, see, mod x less than 1, I think this had come in one of the examples of Fourier's integrals also, the previous 2 videos. So इसको कैसे लिखा था मैंने? This is between -1 to 1. Okay, mod x less than 1, तो हमेशा वो -1 और 1 के बीच में होगा. So if you have not seen previous 2 videos, you can go through it. So I'll just write it here. X is between -1 to 1. हाँ, तो अब लिमिट क्या लिखते हैं? -1 से 1 लिखते हैं.
इसको लिख दिया cos एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स, और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. आई होप यू नो दिस. ई रेज टू आई थीटा इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. cos एस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई टाइम्स साइन एस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, if you want to keep the exponential as it is, not convert into sin and cos at this moment, it is fine. बट बाद में अपने को करना पड़ेगा बिकॉज आई कैन सी साइन एंड कॉस इन माई एक्सप्रेशन. ओके, तो अभी के लिए इंटीग्रेशन के लिए नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया. तो दिस इज नाउ इवन इंटू इवन विच इज इवन, ऑड इंटू इवन इज ऑड. तो ऑड का इंटीग्रेशन 0 आएगा बिकॉज -1 से 1 तक जा रहा है वो. एंड दिस विल बिकम 2 टाइम्स 0 to 1 1 minus x square cos sx dx 2 by pi 1 minus x square sin sx upon s. This is s square plus minus 2 minus sin sx upon s cube 0 से 1. ये 0 अपर लिमिट पे, ये लोअर लिमिट पे 0 आएगा. ओके, बिकॉज 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा और साइन 0 0 है. तो फर्स्ट टर्म तो ख़त्म हो गया. सेकेंड टर्म में 0 डालोगे तो 0, और थर्ड टर्म में भी लोअर लिमिट डालोगे तो 0. तो लोअर लिमिट के लिए द एंटायर इंटीग्रल इज बिकमिंग 0. अपर लिमिट के लिए फर्स्ट टर्म इज 0. तो -2 टाइम्स 1 cos s upon s square प्लस 2 टाइम्स साइन s अपॉन s क्यूब. बस ये आ रहा है. ये क्या आ रहा है? कैपिटल एफ एस आ रहा है. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको. I can pull out -2. S cos s minus sin s upon s cube. ठीक है, बस ये आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब क्या बोला है क्वेश्चन देखो. अब प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट समथिंग इज इक्वल टू -3π/16. अब आई एफ टी यूज़ करना पड़ेगा. तो चलो आई एफ टी यूज़ करते हैं. सो बाई आई एफ टी एफ एक्स इक्वल्स, अच्छा फॉर्मूला क्या था? 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस आई एस एक्स इंटू सॉरी एफ एस. सी डोंट मैस अप विद द फॉर्मूलाज, बिकॉज अगर फॉर्मूला आ गया तो सम खत्म हो जाता है. देन इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटीग्रेशन. ये 1/2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस एक्स. एफ एस इज -2 √2/π into s cos s minus sin s upon s cube ds. ओके, √2 से √2 गया. ओके, और √π हो जाएगा एंड दिस -2 कम्स आउटसाइड. सो -2/π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू
माइनस आई एस एक्स, इसको लिखते हैं कॉस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स. वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू एस. हाँ नाउ एस के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं. ओके अब इस टर्म को ध्यान से देखते हैं. ओके बहुत ध्यान से देखना. सी दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन. ऑड इंटू इवन ऑड. ओके और ये भी ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड फंक्शन. एस क्यूब इज अगेन ऑड, तो ऑड अपॉन ऑड इज इवन फंक्शन. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज फोरियर सीरीज में आई हैव डिस्कस्ड इवन एंड ऑड फंक्शन के बहुत सारे सम्स लिए, तो वहाँ से भी एक आइडिया आना चाहिए. ओके और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ये इवन कैसे है, तो व्हाट दे कैन डू इज आई विल शो इट हियर, देन आई विल इरेज इट. इसको सपोज एक फंक्शन मान लिया मैंने, चलो एफ एस बोल देते हैं इसको, तो एफ ऑफ माइनस एस निकाल लो. सो दिस इज माइनस एस कॉस माइनस एस माइनस साइन माइनस एस अपॉन माइनस एस का क्यूब. ये प्लस साइन एस, ये माइनस एस क्यूब. अब माइनस माइनस कॉमन निकाल लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, कैंसिल हो जाएगा. सो सी वी आर गेटिंग बैक द ओरिजिनल फंक्शन. ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है मतलब इवन फंक्शन है. सो एफ ऑफ माइनस एस इज सेम एज एफ एस. सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. You in case you want to copy it, you want to understand it, you can pause the video and you can just make a note of it. हाँ तो ये क्या हुआ, इवन फंक्शन हो गया ओवरऑल, तो ठीक है. माइनस टू बाई पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी cos sx into this bracket minus I times sin sx into this bracket, okay, dx, sorry ds. this bracket means ये वाला जो bracket है ना, ये वाला रेड वाला ब्रैकेट, ये यहाँ पे लिखना है. तो चलो लिख देते हैं. cos s minus sin s upon s cube. Yeah, so now this is even, this is also even, odd, even, odd, even, odd. minus 2 by pi 2 times 0 to pi, sorry 0 to pi नहीं आएगा, 0 to infinity आएगा. cos sx s cos s minus sin s upon s cube ds. ओके एंड यहाँ पे आएगा fx. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है. तो ये स्ट्रक्चर तो दिख रहा था मुझे, दिखाई दे रहा था वहाँ पे, x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स बाई टू था शायद. तो चलो स्क्रॉल करते ऊपर. x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर चाहिए बट s के जगह पे x चाहिए, एंड आउटसाइड आई वांट cos x बाई टू. तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले पुट x इक्वल टू हाफ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू क्रिएट cos x बाई टू का टर्म. ओके तो fx at x इक्वल टू हाफ इज माइनस 4 बाई पाई 0 से इन्फिनिटी cos s बाई टू आ जाएगा. अच्छा एफ एक्स एट हाफ क्या होगा. अब एफ एक्स का डेफिनेशन क्या था, एफ एक्स का डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आई विल राइट इट इन रेड. एफ एक्स वॉज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर when mod x was
लेस देन 1 एंड 0 व्हेन mod x इज ग्रेटर देन 1. तो mod x लेस देन 1 क्या होता है? x बिटवीन -1 to 1. तो x जब -1 और 1 के बीच में है तब फंक्शन क्या है? फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो इसमें हाफ डाल दो, तो 1 माइनस हाफ का स्क्वायर. Okay, now I don't want s in my final answer. So you have learned the change of variable rule for definite integrals. So I can just replace s by x. So, and we'll be done. Cos x by 2 x cos x minus sin x upon x cube dx. बस ये अपना फाइनल आंसर आ गया. 1 minus 1/4 will give me 3/4. So 3/4 minus 4 by pi x cos x minus sin x upon x cube. 3 pi by 16 minus 3 pi by 16, 0 से infinity cos x by 2 x cos x minus sin x x cube dx. बस हो गया. यही प्रूफ करना था अपने को. दैट प्रूव दैट 0 to infinity cos x by 2 x cos x minus sin x upon x cube dx is minus 3 pi by 16. So this is the way it is done. So you have to go through this sum very carefully, क्योंकि एक दो सम कर लोगे ना तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा. मतलब इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई थिंग्स. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट अस टेक द नेक्स्ट सम. ओके, सो नेक्स्ट सम, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड दे हैव गिवन एज अ फंक्शन एंड हेंस प्रूव दैट समथिंग बोला है. तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लो. ओके, फॉर्मूला पता है, फटाफट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. तो एफ एस इज 1/√2 pi माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स. ओके, अब इंटीग्रेशन ब्रेक होगा. x लेस देन 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 और ये 0 से इन्फिनिटी. अच्छा, ये x इक्वल टू 0 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. इंटीग्रेशन में मतलब एक पॉइंट मैटर नहीं करता. ओके, सो डजेंट मैटर बिकॉज इफ़ यू हैव स्टडीड डेफिनेट इंटीग्रल इन डिटेल तो वहाँ पे पता होगा कि एक पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, सो इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी शॉर्ट, कैसे बताऊँ? एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है. ई रेज टू माइनस एक्स इज दिस, बट आई डोंट वांट दिस पार्ट, सो वी कैन इरेज दिस. 0 पे ओपन हो गया और ये 1 है तो हाफ इधर किधर होगा और 0 से इन्फिनिटी मीन्स दिस एरिया. तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, तो एक पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे. ओके, आइडिया इज दैट डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट एरिया. ओके, तो ये मैंने सिर्फ एरिया का हेल्प लेके ये बताया कि वाई दैट पॉइंट डजेंट मैटर, जस्ट कि अगर किसी को डाउट ना जाए. ओके, सो 1/√2 pi, हाँ, 0 से इन्फिनिटी. सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को 3 पार्ट में ब्रेक करना है. सी कैसे ब्रेक करना है? 3 नहीं, सॉरी 2 पार्ट में. माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड 0 to infinity. ओके, यू विल ब्रेक द इंटीग्रेशन इन 2 पार्ट्स, बट माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए यहाँ पे 0 इंटू ही आएगा. सो बेटर आई एम नॉट राइटिंग दैट टर्म. ओके, जस्ट टू सेव one step. Okay, if you want to write it you can write. I am not writing it here. Okay, ये 1/√2 pi 0 से इन्फिनिटी e रेज टू माइनस x कॉमन ले लिया, माइनस तो इधर 1 माइनस आई एस आ गया.
इसको इंटीग्रेट कर लो। ये 0 से इन्फिनिटी, सो 1/√2 पाई ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू माइनस 0 अपॉन ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। वन माइनस आई एस, ये और एक कट, ये 1 प्लस आई एस, 1 प्लस आई एस, rationalizing it, so 1 प्लस आई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। ओके, दिस इज योर एफ एस। अब क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये प्रूफ करना है ना अब, 0 टू इन्फिनिटी दिस, तो इनवर्स फोरियर से अपने को साइन और कॉस मिल जाएगा। सी बाई आई एफ टी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस आई एस एक्स इंटू एफ एस डी एस। ई रेज टू माइनस आई एस एक्स और एफ एस क्या है, 1/√2 पाई 1 प्लस आई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। 1/√2 पाई 1/√2 पाई इज 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स इंटू 1 मैंने इसको ब्रेक कर लिया टर्म को। ओके, 1/s स्क्वायर प्लस 1 आई टाइम्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स टर्म बाय टर्म, तो 4 टर्म मिलेगा। सो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई टाइम्स साइन एस एक्स इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट ब्रैकेट, अब सेकंड टर्म के साथ प्लस, ओके बाजू में लिखता हूँ, प्लस आई टाइम्स कॉस एस एक्स इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर साइन एस एक्स इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। सो बस टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया इस स्टेप में। अब यहाँ पे आते फिर से, सी दिस इज अ इवन फंक्शन बिकॉज एस के जगह पे माइनस एस डालो, क्वेश्चन सेम रहेगा। दिस इज ऑल्सो, सॉरी दिस इज अ ऑड फंक्शन, s upon s square plus 1, so that s is making it odd. Cos is even, sin is odd. Okay, तो ये हो गया even even, odd even, odd even is odd, even even is even। ये हो गया even, ये हो गया odd, तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा। तो ये दो टर्म खत्म, 0 0, इमेजिनरी टर्म्स खत्म, आई स्क्वायर के साथ ये कैंसिल होगा, ये ऑड, ये भी ऑड, ऑड ऑड इवन। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी विल बिकम 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये 2 कौन सा आया, डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी का आया। एंड अगेन इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, फोरियर सीरीज
इवन ऑड फंक्शंस, आई थिंक 5th लेक्चर, प्लीज़ वॉच द वीडियो, बिकॉज स्टार्टिंग में पहले मैंने एक्सप्लेन किया है सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह. ओके, सो वेरी नाइसली कंपाइल्ड प्ले लिस्ट इट इज़, यू कैन प्लीज़ चेक इट. cos sx इंटू 1/s² + 1, और कौन सा टर्म है, प्लस s sin sx अपॉन s² + 1 ds. ये और ये कट, यहाँ पे क्या आएगा, fx. ओके, तो अब 1/π 0 to infinity, I am merging the numerators, cos sx plus s sin sx ds is equal to fx. ओके, fx का डेफिनेशन तोड़ के लिख दिया मैंने. हाँ, और यही प्रूफ करना था अपने को. सी, cos sx plus s sin sx अपॉन 1 + s², और fx का डेफिनेशन चलो लिखते हैं. 0 था, हाफ था, e⁻x था, x <0, x = 0, x > 0. अब ये 1/π वहाँ पे जाएगा, ये वाला. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आई एम इरेजिंग इट हियर ओनली. यहाँ पे आ जाएगा पाई, और इधर आ जाएगा पाई इंटू 0 विल बी 0. ओके, सो 1/π साइड में था, उसको मैंने वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज़ व्हाट वी गेट एज अ फाइनल आंसर, और यही प्रूफ करना था. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, इट्स वेरी इजी provided you know how to apply formulas and you know how to take the integration. Okay, so I think, yeah, let us do one more sum. Okay, next sum, find Fourier transform of so and so, hence evaluate so and so. Okay, so now you know the steps, so what you can do is you can pause the video, you can solve the integral. Okay, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और एग्जाम में ऐसा मत करना कि वन डे बिफोर यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो एंड डायरेक्टली डूइंग अ सम इन द एग्जाम, तो शायद हाथ ही नहीं चलेगा वहाँ पे. तो एटलीस्ट इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो जस्ट वन नाइट बिफोर द एग्ज़ाम 1-2 सम प्रैक्टिस कर लेना. ओके, बिकॉज ये डिफ़िकल्ट नहीं है टॉपिक, तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है. हाँ, चलो ये करते हैं. एफ एस इज़ 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻ISx fx dx. Okay, again this is x between -a to a, because x mod x लेस देन समथिंग होगा ना, तो वो बिटवीन आ जाएगा -a to a. ओके, और ये ऐसा हो जाएगा x > a और x लेस देन -a. मतलब अगर नंबर लाइन बनाते हो, यहाँ पे -a है, यहाँ पे a है, तो इसके बीच में तो ये वाला फंक्शन आएगा, और यहाँ पे और यहाँ पे 0 आएगा. ओके, सो इट्स लाइक दिस. तो what I'm doing is, instead of -∞ to infinity, I'll write it as -a to a into 1 dx. So -a to a, I'm writing this as cos sx. You can integrate e also, not an issue. I am purposely breaking it. तो ये एक इवन फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 times 0 to a cos sx dx. So this is √2 upon √π sin sx upon s 0 to a sin as upon s. बस हो गया ये फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट देखते हैं. हेंस इवैल्यूएट दिस. ओके, सो बाय IFT fx equal to
वन अपॉन रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस आई एस एक्स इंटू एफ एस डी एस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस आई एस एक्स एफ एस कितना आएगा रूट टू बाई पाई साइन ए एस अपॉन एस डी एस टू टू कट रूट बाई पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स और यहाँ पे आ गया साइन ए एस अपॉन एस. Okay, this whole thing is a even function. क्यों? Because न्यूमरेटर ऑड है, डिनोमिनेटर भी ऑड है, ऑड ऑड इवन, ये ई लिखा है मैंने. ओके, सो वन अपॉन पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू साइन ए एस बाई एस माइनस आई टाइम्स साइन एस एक्स इंटू साइन ए एस बाई एस ds. सो यहाँ पे देखते हैं इवन 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 ऑड इवन ऑड. ओके, तो ज़ीरो हो जाएगा. सो ये टू बाई पाई ज़ीरो टू इन्फिनिटी. अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रखना है क्या? ठीक है. सो आई जस्ट सॉ इन द हेंस पार्ट उनको लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रखना है, तो ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रखो, अपने को क्या प्रॉब्लम है. बट इसका इंटीग्रल तो ज़ीरो ही होगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, दिस टर्म वुड बी ज़ीरो. सो आई एम राइटिंग दिस एज कॉस एस एक्स साइन ए एस अपॉन एस डी एस and this is fx. Now wait, let me again check क्या प्रूफ करना है. sin lambda a cos lambda x upon lambda. a और x है क्या एक्सप्रेशन में? ओके, तो s के जगह पे बस लैम्डा डालना है, ख़त्म. और वन अपॉन पाई एफ एक्स में जाएगा, तो आई एम राइटिंग इट एज, सो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग एस बाई लैम्डा, चेंज ऑफ वेरिएबल रूल. और एफ एक्स क्या था? एफ एक्स शायद ऐसा था 1 और 0, मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन इक्वल टू था क्या? हाँ, लेस देन इक्वल टू था. और यहाँ पे जो वन अपॉन पाई है वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई एम इरेजिंग इट फ्रॉम ईयर, आई एम मल्टीप्लाइंग इट ईयर. ओके, और 0 इंटू पाई करोगे तो 0. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो यस, आई होप इट इज़ क्लियर. सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल take sums based on Fourier sine Fourier sine transform and Fourier cosine transform. ओके, तो अब वो पार्ट करेंगे अपन, तो मेक श्योर कि ये पार्ट बहुत अच्छे से आता है, एटलीस्ट द फॉर्मूला पार्ट, एंड देन अगेन आई विल एक्सप्लेन यू 2-3 मोर फॉर्मूलाज, तो उसी पे बेस सम्स करना है. ओके, सो यस, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून. ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.